آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ اس معاملے کو اتنا لٹکایا گیا؟ 3 مہینے تک ایم پی او میں رکھا گیا، اس کے بعد اب ایف آئی آرز منظر عام پر لائے جا رہے ہیں. ایک یہ چیز. دوسری، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کتنی ایف آئی آر ہیں؟ میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ 41 کے لگ بھگ ایف آئی آر تمام لوگوں پر یا صرف ڈاکٹر مارنگ پر؟ کہتے ہیں جی فی الحال نے قانونات میں لیا. آپ جو یہ کر رہے ہو جس طرح تیری ایم پی او میں کیا فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا، انفلوئنسڈ ہوا یا انڈر پریشر چیزیں لی گئی، یا اب جو کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی تو قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے. بلوچستان اسمبلی میں انسداد دہشت گردی ایکٹ جو پاس کیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا ایکٹ ہے اور یہ کن پر لاگو کیا جا سکتا ہے؟ کیا ڈاکٹر مارنگ پر یہ ایکٹ لاگو کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہم سب پر لاگو کیا جا سکتا ہے، آپ پر بھی، مجھ پر بھی، ڈاکٹر مارنگ پر بھی. آپ ڈرا رہے ہیں سر؟ ڈرا نہیں رہا ہوں، وہ یہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کی ڈاکٹر مارنگ یا باقی جو گرفتار قیادت ہے بی وائی سی کی، ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ کیا کہتے ہیں وہ اور کیا صورتحال ہے؟ وہ صرف اس وائس کو دبانا چاہتے ہیں جو کبھی نہیں دبے گا. ڈاکٹر مارنگ ہے آج، کل کو کوئی اور ہوگا. آپ کو امید ہے کہ عدالتوں سے ان کو ڈاکٹر مارنگ یا باقی جو گرفتار افراد ہیں ان کو انصاف ملے گا؟ قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں، جو نہیں کیے جا رہے ہیں فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے. بادشاہ سلامت کو یہ خیال آ گیا کہ اس کو میں نے رکھنا ہے، اس نے کہیں میری توہین کی ہوگی، میری انا کو ارج کیا ہوگا، یا اس کے ایکٹیویزم سے خطرہ ہے، اس کو جانوروں کی طرح میں کسی باڑ میں رکھ سکتا ہوں، جیسے گوانتانامو بے، جیسے روہنگا مسلمانوں کے ساتھ چائنا میں ہو رہا ہے. چائنا کا ماڈل ہے، وہاں سے یہ لے کر آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. چونکہ آپ کو پتہ ہے گزشتہ 2 روز قبل ڈاکٹر مارنگ بلوچ سمیت باقی جو بی وائی سی کی قیادت تھی ان کو تقریباً 3 مہینے بعد منظر عام پر لایا گیا اور ان کو عدالت میں انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے وہاں پر پیش کیا گیا، اور اب ان کو 10 روزہ ریمانڈ پر جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا گیا ہے. اوور آل سچویشن پر، اوور آل چیزوں پر ہم نے رابطہ کیا. ہم نے آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں جنہوں نے شرکت کی ہے ایڈوکیٹ عمران بلوچ صاحب. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم، فار کمنگ ہیئر. عمران صاحب، ہم نے دوبارہ آپ کو زحمت دی ہے. یہ سچویشن ہوا کیسے؟ ڈاکٹر صاحبہ اور باقی جو قیادت ہے بی وائی سی کی 3 مہینے بعد لائے، کیا سچویشن تھی، کیا بنا، اور یہ اچانک سے چیزیں کیسے سامنے آئیں؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ادارے کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں، جب تک تیری ایم پی او کا کیس بلوچستان ہائی کورٹ کے تک چل رہا تھا تو میں اس میں وکیل باقاعدہ انگیج تھا، پراپر میں اپنی سروسز دے رہا تھا، اور ایز اے پرو بونو وکیل میں اپنی سروسز دے رہا تھا. لیکن جب بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد میں چونکہ وکیل نہیں ہوں تو مجھے بذات خود بہت سی چیزوں کا نہیں پتہ کہ میں کوئی ایسی رائے دوں جو مناسب ہو یا نہیں مناسب ہو، یعنی فیکٹس کے حوالے سے یا لا کے حوالے سے. تو جنرل چیزوں پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لا پہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کے کیس پہ اسپیسیفکلی. تو وہ ہمارے پروفیشنل ایتھکس میں کچھ چیزیں لوگ کر لیتے ہیں. ہم نے اپنے استادوں سے بھی جو پڑھا ہے سیکھا ہے پروفیشنل ایتھکس میں بھی، کہ آپ کا بھائی بھی ہو سکا، گھر کا بھی کیس ہو، جب وہ آپ کو وکیل نہیں کرتا کسی اور کو انگیج کرتا ہے، آپ نہ اس سے پوچھ سکتے ہو نہ وکیل سے پوچھ سکتے ہو، نہ فون کر کے ادھر ادھر سے وکیل کو جی آپ کا ڈرافٹ کدھر ہے ہمیں بھیج دو، جی آپ کی فائل کیسی ہے، اور بغیر پوچھے وہ وکیل کی اپنی ڈگنیٹی پہ بات آ جاتی ہے. ایز اے ایکٹیوسٹ جانا کچھ اور ہوتا ہے. یہ میں نے بھی میڈیا سے دیکھا، چونکہ میں خود یہاں پہ تھا نہیں، تو میڈیا سے میں نے دیکھا کہ جی یہ آیا ہے، ان کو لے کر آئے ہیں، اور گورنمنٹ نے جو 3 MP کا آرڈر تھا اس کو ودرا کر دیا ہے. تو ودرا کرنا ان کے اختیار میں تھا، انہوں نے ودرا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ انصاف کے تقاضے تو پورے نہیں کیے گئے ہیں پہلے دن سے. اور دوسرا یہ کہ اچانک سے ہو جانا تو یہ کہ جب انہوں نے اپنی ایم پی او کی جو آرڈر ہے ودرا کر دیا ہے، تقریباً 5-6 دن پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک وہ ریویو بورڈ ہے وہ اس پر بیٹھے گی، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ ریویو بورڈ جو ہے وہ بیٹھی ہے، یا ڈائریکٹلی انہوں نے اپنے آرڈر کو ودرا کر دیا. جب وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو باقی چیزیں یہ ہے کہ انہوں نے 3 MP میں بھی ایف آئی آر جو ہے ان کی کاپیاں پرووائڈ کر دی تھی بیفور دی کورٹ کہ جی ان کے خلاف مختلف بلوچستان کے علاقوں میں، بلوچستان سے باہر جی ایف آئی آرز ہیں. پاسٹ پریکٹسز ان کے جو ہیں، جس طرح لوگوں کو ڈپرائیو رکھا گیا، جس طرح لوگوں کو قانونی اور آئینی پروسیس سے دور رکھا گیا، ان کے فنڈامنٹل رائٹس، فری اینڈ فیئر ٹرائل کی جو اپرچونیٹی ہوتی ہے، ایون 3 MP کے تحت بھی جس طرح رائٹس ہوتے ہیں ایک شہری کو، وہ تب بھی ان کو نہیں دیا گیا تھا. تو اب اگر 3 MP کو ودرا کرتے ہیں، اس میں ظاہر اتنی بدنامی ہو گئی تھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اداروں نے، یہاں پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس ادارے ہیں یا جو وکیل ہیں ہم جیسے جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کو بیہائنڈ دی بار رکھا جاتا ہے، اس کی ہمیشہ سے ہم نے خلاف بات کی ہے اور ڈٹ کے ساتھ رہے ہیں مظلوموں کا اور محکوموں کا. جہاں پہ ہماری سروسز
सर्विसेज किसी को ज़रूरत पड़ी है प्रोफेशनल फील्ड पे, पॉलिटिक्स में एक्टिविज्म में तो उसमें ये नहीं होता कि कोई आपको इनवाइट करे, यहाँ पे एक प्रोफेशनल एथिक्स के साथ जहाँ जो कहते हैं जी आपकी सर्विसेज चाहिए, एज ए प्रो बोनो काउंसिल भी हमने अपनी सर्विसेज मुहैया की है, उस पर तो हम जाएंगे। अब उनके पास जो बचता है, आपके सवाल का जो लास्ट पोर्शन है कि जी ये बाकी का अचानक से, तो बाकी ये हुआ है कि जो FIRs हैं एक एक करके अभी उनको कस्टडी में ले रहे हैं मुतल्लिका तानों के कि जी अब ATC के सामने इनको पेश कर दिया, किसी को सिविल ताने में रखा है, जो मैं मीडिया से सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, और जो लवाकिन कह रहे हैं, और किसी को उस पर बिजलीगर ताने में रखा है, और मुलाकात के लिए बकौल उनके कि जी रिमांड में, खैर वो एक अलग चीज़ लीगली आ जाती है। तो अब इसका मतलब है कि उन्होंने वो FIRs को खोलना शुरू किया है, जो उन्होंने पता नहीं कब किस डेट पे किस साल में किए हैं, और इनको बताया भी नहीं गया है। वो खुद एक इलीगल अमल है कि आप चुपके से बियॉन्ड द मतलब कर्टेन FIR कर दो और कानून को गलत इस्तेमाल कर दो अपने हाथ में। वो कहते हैं ना जी फलाने ने कानून हाथ में लिया, आप जो ये कर रहे हो, जिस तरह तेरी MPO में क्या फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया, इन्फ्लुएंस्ड हुआ या अंडर प्रेशर चीजें ली गई, या अब जो किया जा रहा है, तो ये भी तो कानून को हाथ में लेने वाली बात है। बिल्कुल सर, एक जगह आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वजह इस मामले को इतना लटकाया गया? 3 महीने तक MPO में रखा गया, उसके बाद अब FIRs मंजर यहाँ पर लाए जा रहे, एक ये चीज़। दूसरी, आपके पास क्या इत्तला है कितनी FIR है? मेरी मालूमात के मुताबिक जो है वो 41 के लगभग FIR तमाम लोगों पर या सिर्फ डॉक्टर मारंग पर? मतलब उसमें ये कि अगर 41 FIR डॉक्टर मारंग पर है तो उसमें को अक्यूज्ड भी उन्होंने रखे हैं वगैरह वगैरह में, तो किसी को भी डाल सकते हैं। तो बाकी जो उनके साथी हैं और ऐसे बहुत से हैं जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, अपने हिसाब से भी एक्टिविज्म कर रहे हैं, BYC से उसका ताल्लुक है या BYC से भी नहीं है, जो बलोच ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उस हिसाब से उनको सबको रखा गया और वगैरह में वो किसी को भी डाल सकते हैं। फिलहाल ज़ाहिरी तौर पे यही 6 लोग हैं यहाँ पे, और एक है डिस्ट्रिक्ट जेल उसमें गडानी में, वहाँ पे उनको रखा गया है। उनको भी फिलहाल ज़ाहिरी तौर पे किसी जेल अदालत के सामने पेश नहीं किया गया है। अब एक और आ गया है HRCP का अब्दुल्ला बलोच, उनको भी रखा गया है, इनको गालिबन 3 MPO में रखा है। इनके है कि देखिए ना, हमने शुरू में कहा कि 3 MPO है या FIRs है, फ्री एंड फेयर ट्रायल का तो मौका नहीं दिया गया ना इनको। जो आईनी तकाजे हैं, जो कानूनी तकाजे हैं, जो लीगल प्रोसेस है, उस प्रोसीजर का तो इनको कभी भी नहीं दिया गया। 3 MPO में भी पहली दफ़ा जब हम हाई कोर्ट गए तो उन्होंने जी उसको रिप्रेजेंटेटिव उसमें रिमांड कर दिया रिव्यू बोर्ड के सामने कि जी इसको देख लिया, और हमें ये कहा गया कि जी आप लोग रिव्यू कमेटी के सामने क्यों नहीं गए। हमने कहा कि उस सूरत में हम जा सकते हैं कि जब एक प्रोसेस है उसको वो पूरा करें, हमें कोई आर्डर दे दे, फिर हम वहाँ पे जाएंगे, अगर कोई एडवर्स आर्डर आ जाती है तो उसको हम हाई कोर्ट के सामने पेश करेंगे। उन्होंने तो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं किया, हमें तो इससे बेजा में रखा गया है, हमें तो किसी चीज़ का भी नहीं पता। FIRs की जहाँ तक बात है, ज़ाहिर है पॉलिटिकल जब लोग होते हैं तो जैसे अली वजीर का केस है और भी बहुत सी केसेस हैं यहाँ पे बलूचिस्तान में लोगों के सामने, जैसे नवाब खैर बख्श साहब को 2000 में उनको ज़ाहिरी तौर पे जस्टिस मरी के केस में उठाया गया, फिर उन्होंने मीडिया के थ्रू कहा कि जी ये अजीब है, मुझे रखा किसी और केस में, अंदर मुझसे इन्वेस्टिगेशन ये होती है कि जी हम कोलू में काहन में सड़कें कैसे गुजारें, वहाँ पे तेल कैसे निकालें। उनका जिस केस में मुझे रखा है उस पर इन्वेस्टिगेट करें। तो यहाँ पे अक्सर सियासी केसेस वर्कर्स के साथ जो केस बनाते हैं वो झूठी केसेस होते हैं, फिर उसके आपको हिस्ट्री भी समझ आती है कि जी ह्यूमन राइट एक्टिविज्म ये करते हैं, ये फ्री एंड फेयर ट्रायल की बात करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खिलाफ बात करते हैं, मिसिंग पर्सनस इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के हवाले से बात करते हैं, तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आती, तो इसलिए पहले 3 MPO में रखा। उसके बाद ये FIRs के साथ इसमें कितना अरसा चलाते हैं, कितना अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको इंसाफ के तकाजे पूरी किए जाते हैं, आइन और कानून में जो दिए गए हैं हकूक़ हैं उनको किस हद तक मानते हैं या नहीं मानते, अब उन पर डिपेंड करता है। सर, मैंने जब आपके साथ पहला पॉडकास्ट किया तो आप 3 MPO के केस में बहैसियत कानूनदान और बहैसियत वकील आप मायूस थे। क्या अब आपको उम्मीद है कि अदालतों से उनको डॉक्टर मारंग या बाकी जो गिरफ्तार अफराद हैं उनको इंसाफ मिलेगा? मैं खुद को एक स्ट्रगलर कहता हूँ, मैं कभी भी मायूस नहीं हुआ हूँ, ना मैं तब मायूस था ना मैं आज मायूस हूँ। मैं उस दिन मायूस हूँगा जब मैं स्ट्रगल करना वो छोड़ दूंगा, चाहे बिफोर द कोर्ट हो, चाहे प्रेस क्लब के सामने हो या कहीं पे भी हो। अब मैं और आप बैठे हैं, मैं समझता हूँ ये भी हमारी एक स्ट्रगल का हिस्सा है, वरना कहीं पे बैठ के हम दुकानदारी कर रहे होते या कुछ और कर रहे होते, इस मौजू पे बात करते हैं। मैंने ये कहा, तब भी कहा है, आज भी ये कहता हूँ कि
जो 3 MPO का केस है उसमें प्रोवाइडेड लॉ को, प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया, वो एक गैर कानूनी अमल था। आज के दौर में वैसे भी किसी इंसान को आप ना इल्जामात है, ना FIR है, ना कोई प्रूफ है, ना फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका है, आप उसको गैर कानूनी तौर पे इस तरह 3 MPO में रखते हो, या आप जो इन्होंने बनाए हैं जी प्रिवेंटिव डिटेंशन वहां पे भी रखते हो। हाँ, तब भी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। अब भी ज़ाहिरी तौर पे मुझे इंसाफ के तकाजे पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये उन पर डिपेंड करता है कि जो इस अमल का हिस्सा है, या कोई सो कॉल्ड गवर्नमेंट हो, या रियासत होता है, रियासत के इदारे होते हैं, या जुडिशरी होते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आपने अपना जो कानून बनाया है, जो प्रोसीजर लाए, आप उसको फॉलो करें, उस पर अमल दरामद कर लें। मायूसी तो हम कभी मायूसी का शिकार नहीं हुए। एक जद्दोजहद है, तविल जद्दोजहद है, इसको हमेशा जारी रखें। चले, हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको कभी मायूस होने का मौका ही ना दे। बहरहाल, लेकिन सर हमने देखा जब पहली मरतबा 3 MPO में गिरफ्तारियां हुई, 100 के करीब तकरीबन गिरफ्तारियां थी, रिलीज होते होते आखिर 6-7 लोगों तक आके रह गए। इनको क्यों रिलीज नहीं किया जा रहा, इनके बावजूद इसके कि बड़ी स्ट्रगल है एक 3-4 महीनों की? वो 250 से ऊपर थे, उसमें 100 के लगभग BYC के थे, बाकी लखपास पे जो BIMP का धरना बैठा था, उन वहां से जो लोग धरनों में जा रहे थे उनको उठा के लेके गए थे। जो गंडानी जेल में बंद है इमरान बलोच साहब, जो है नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो एक सियासी वर्कर हैं, BSO में भी रहे। उनका कसूर ये है कि हबचौकी में इस साल और गुज़िश्ता साल जो मिसिंग पर्सन्स के लवाकिन वहाँ पे जाते थे, उन्होंने धरने दिए प्रेस क्लब के सामने, हब शहर में मुख्तलिफ सड़कें उन्होंने बंद की। तो ये उनका हैसियत एक इंसान के, हैसियत एक सियासी वर्कर के जाते थे, वहाँ पे शमूलियत इख्तियार करते थे। वहाँ पे जब नेगोशिएशन कमेटियाँ बनती थी, अब इनका देखना किस तरह ये टारगेट करते हैं लोगों को, और फिर कहते हैं जी आइन, जमहूरियत, कानून और इंसाफ, और जी ये पुरअमन है, ये गैर पुरअमन है, जी टेबल टॉक नहीं करते, जी बात नहीं करते। उसका कसूर ये था कि वहाँ पे वो जाते थे, उनको लवाकिन के साथ, खवातीन के साथ, वो उनको रिक्वेस्ट करते थे कि हमने ये कमेटी बनाई है, गवर्नमेंट खुद आई है नेगोशिएशन के लिए। वहाँ पे उनका जो इंतजामिया होता था, AC की शक्ल में, DC की शक्ल में, SHO की शक्ल में, वहाँ पे कोई भी उनके हुकूमती नुमाइंदे होते थे, वो उनके साथ मुज़ाकरात करते थे। ये इमरान बलोच साहब, जैसे मैं भी कई दफ़ा रहा हूँ, आप भी रहे होंगे, किसी जर्नलिस्ट की शक्ल में या HRCP के नुमाइंदे की शक्ल में, वो उनके साथ बैठता था, नेगोशिएशन करता था। अब ये सियासी वर्कर है, सियासी वर्कर उनको बहुत सी चीज़ों का समझबूझ होता है। शायद इन्होंने ऐसी बातें रखी होंगी, इन्होंने ऐसी क्रिटिकल क्वेश्चन किए होंगे जो उनको पसंद नहीं आए। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मौका है कि हम आपके साथ ये करेंगे जो आप वो कर रहे हैं। तो उनको 3 MPO में रखा है। इनके 90 दिन पूरे हो गए अभी पिछले हफ्ते। इसको रात को छोड़ा गया, ये अपने घर आया है, एक सारा दिन घर गुजारा है, रात को फिर उसको अगली दिन रात को फिर उठा के लेके गए, दोबारा से उनको रखा गया। जो बीच में 90 दिन पूरे हुए ना, इनका 15 दिन एक्सटेंड किया गया। उसकी हद तक कोई एक्सटेंशन नहीं थी। अब जो जेलर साहब है उसने देखा होगा कि यार मेरे पास तो कोई ऑर्डर नहीं है, मजीद में इसको नहीं रख सकता, एक दिन इस बीच में इसको छोड़ दिया गया है। फिर उसको लेके गए। एक ये जैसे गफार बलोच साहब हैं, गफार बलोच जो है वो भी नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक है, ठीक है। गफार बलोच का सिर्फ कसूर ये है कि एक तो वो बेबो बलोच के वालिद हैं, एक ये वजह है। उनके बकौल उनको बुलाया गया कि जी आप आ जाएं, हम आपसे बातचीत करते हैं, वहाँ पे उनको रखा गया। दूसरा उनका कसूर ये है कि ये मिसिंग पर्सन्स के जहाँ पे एहतजाज वगैरह होते थे, आना बैठना, हमदर्दी दिखाना, क्यों हुआ है सियासी वर्कर। या रेड जोन में धरने थे 50 दिन, उससे पहले आगे कोई आ गया कि जी मैं अभी आवारान से आया हूँ, मशके से आया हूँ, अबचौकी से आया हूँ। उन्होंने कहा रिवायत का हमारा हिस्सा है, उसका सियासत से ताल्लुक नहीं है। जी मेरा बेटा आपके लिए हाजिर है, आप मना तो नहीं कर सकते इसको। बलूचिस्तान की अपनी रिवायत है, फिर बलोचों की अपनी रिवायत है। कोई कहे जी खाना खिलाओ, उन्होंने कहा खाना खिलाता हूँ। या बाज दफा ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का शिकार करके सिविल हॉस्पिटल के सर्द खाने में डेड बॉडीज लेकर आते थे। तो वो कहते थे कि जो कोई ऐसा जिम्मेदार दे तो फिर हम लाशें हवाले करेंगे। अब जो लवाकिन है उसका ताल्लुक मशके से, आवारन से, कोलू बारकान से, पेरिफेरी से, तो इसको क्योंकि पता होता था कि यार इमरान से क्या काम लेना है, दानिश साहब से क्या काम लेना है, या किसी और से क्या काम लेना है, कहाँ ये काम आ सकते हैं। वैसे थी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ये सियासी वर्कर तो एक बालातर चीज होती है, ये तमाम चीजें उसकी जिम्मेदारी में आती हैं। तो ये वहां पे भी जाता था, जी बिल्कुल जहाँ पे मेरी जरूरत है मैं हाजिर हूँ। अब उसको रखा गया इस बुनियाद पे
पहले ये समझते थे कि सिर्फ वालिद साहब की हैसियत से उनको रखा गया, सिर्फ बेबो के वालिद की होने की हैसियत से नहीं रखा गया, उनकी ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविज्म है, इंसानियत के लिए जो खिदमत है एक सियासी वर्कर की हैसियत से, उनको इस वजह से भी बियॉन्ड द बार रखा गया। बाकी जो बचते हैं 5, उन 5 को BYC के रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से, कोई मेंबर है, कोई हमदर्द है, यानी जो प्रॉपर मेंबर भी नहीं है, अब इस तरह के भी हैं, कोई उनके मरकजी अहदेदारान है, उनको जो बालाच बलूच की जो जिनका एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार हुआ तुर्बत में, वहाँ से ये सिलसिला बना, जो इस्लामाबाद चले गए, इस्लामाबाद से वापस आ गए, फिर BYC का बाकायदा बैसित बॉडी उन्होंने ऐलान किया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, फिर राजी मुची हुई ग्वादर में, फिर तालबंदेन में हुआ, तो उनको ये एक्टिविज्म उनकी पसंद नहीं आई। इसलिए पसंद नहीं आई कि जो वो ग्वादर की बात करते हैं, CPEC की बात करते हैं, बलूचिस्तान में उनकी कोई समरात नहीं है, पीने के पानी नहीं है, उन दिनों सैलाब आया, एक किस्म की कैद भी आ गई, ताफून फैला, दवाइयाँ नहीं है, खुराक नहीं है, बलोच वहाँ पे जा नहीं सकता। इसी तरह सुई से लेकर आज तक पास्ट प्रैक्टिस को देखते हुए जी रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, IMF कर्ज दे रहा है, वर्ल्ड बैंक कर्ज दे रहा है, कमेटियाँ बनी है, उस पर NGOs काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं ग्राउंड पे। आप देख लें कि लोगों को जम्बात होता है, उससे लेते हैं पैदल गर्मी में, वो चलने भूख से और प्यास से मर जाता है। तो ये इनकी एक्टिविज्म थी। फिर उन्होंने कहा कि जिनको आप उठाते हो ये एक जुर्म है, ये जुर्म जो है इसको रोका जाना चाहिए, जुडिशल किलिंग, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार करते हुए एक जुर्म है, इसका तदारुक होना चाहिए। गुज़िश्ता 25 साल से बलूचिस्तान को मख्तलगाह बनाया गया है, तजुर्बागाह बनाया गया है, इज्तिमाई कब्रें आबाद हो रही हैं। तो ये लीडरशिप जो है इसने उसके खिलाफ बात की। मेन इशू जो है मिसिंग पर्सन्स है, लवाकिन है, ऑपरेशन है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है। उसकी बुनियाद पर जो इफेक्टेड लोग थे पेरिफेरीज में, वो हमेशा से चाहते थे कि उनको कोई पॉलिटिकल ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, वॉइस मिले जो उनकी नुमाइंदगी करे। तो उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर मारंग साहिबा, ये साथी जो हैं, आप आए, हमारी नुमाइंदगी करें, हमारे लिए रिप्रेजेंट करें। जैसे ज़हीर बलोच को इन्होंने उठाया, कमेटी बनी, उन्होंने कहा जी आप लोग रिप्रेजेंट करें। बालाची फैमिली थे, उन्होंने कहा आप रिप्रेजेंट करें। राशिद हुसैन है, डॉक्टर दीन मोहम्मद है, या जितने भी हैं, डॉक्टर दीन मोहम्मद की अपनी बेटी इस प्रोसेस में साथ रही है, अपने वालिद के लिए एक्टिविटी करती रही है, सायरा बलोच है या माजिब शफीक है। तो ये तमाम वो लोग थे, वही लवाइकी नहीं आई है ज्यादातर। तो उन्होंने कहा कि जी आप चूंकि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हमारा साथ दें। लोगों ने, कौम ने, इफेक्टेड जो मुतासरीन है, उन्होंने हेल्प लिया है इनसे। उन्होंने कहा कि आप हमें सर्विसेज दें। जैसे हमारे प्रोफेशन में प्रोबोनो वकील ये है कि जी आप मुझे वकील बाकायदा एंगेज करोगे, मेरा सर्विसेज लोगे, फीस कोई नहीं है, फीस कोई नहीं है। तो वहां पे भी इसी तरह से उन्होंने कहा जी ठीक है हम अपनी सर्विसेज देते हैं। तो ये अदा उनको पसंद नहीं आई सियासत का, इसलिए फिर उन्होंने कहा कि जी वो आवाज जो प्रेस क्लब के सामने दिखाई देती है, सुनाई देती है, वो आवाज जो एहतजाज करती है, ह्यूमन राइट्स की बात करती है, सड़कों पे आती है, लवाकिन की जुबान बनती है, टेबल टॉक को वो मौजूद है, कमेटी बनी वो मौजूद है, इनकी काउंसलिंग करते हैं। लिहाजा हमें ये अदा पसंद नहीं है, इसलिए इसका बेहतरीन हल ये है कि आपके तमाम जो आईनी और कानूनी हकूक है वो हम सलब करके आपको बिहाइंड द बार रखते हैं। तो ये हुआ है। बिल्कुल, आप ओवरऑल सिचुएशन से आगाह करें सर। मैंने एक FIR देखी डॉक्टर मारंग पर, इंसदाद दहशतगर्दी की एक्ट्स कुछ शामिल की गए। क्या एहतजाज करना दहशतगर्दी? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है राइट टू असेंबल, राइट टू स्पीच, कानून आइन आपको इजाज़त देते हैं कि आप बात करें, और कोई टेररिज्म का एक्ट नहीं है। डॉक्टर मारंग की जितनी स्पीचेस हैं, जितने मैंने सुने हैं, देखे हैं, बाद स्पीचेस मेरे सामने हुए हैं, क्या कह रही है उसमें, क्या कहा है उन्होंने? यही कहा है जो पहले भी मैंने कहा, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को ख़त्म किया जाए। क्या यह दहशतगर्दी है? मैं भी बात करता हूँ इस पे, आप भी बात करते हैं, हम सब कहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का लोगों को शिकार ना बनाया जाए, ये बात उन्होंने की है, ये हम भी करते हैं, इस पे हम मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हो। जिबरी गुमशुदगी का शिकार ना करें, ठीक है, बलूचिस्तान को मख्तलगाह ना बनाएं। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे आप कहें कि उन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी बात की है। वेस्ट को आज देख लें, वो हमसे ज्यादा इंसानी हकूक को समझते हैं, वो हमसे ज्यादा आइन और कानून की बात करते हैं, वो हमसे ज्यादा डिमांड करते हैं आइन और कानून पे बात हो। वो उसको 100 इन्फ्लुएंशियल इंसान मानते हैं, उसमें शुमार करते हैं, वो उसको अवार्ड देते हैं, वो कहते हैं नोबेल प्राइज जो है आपको उस कैटेगरी में हम शामिल करते हैं, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात होती, वो सबसे ज्यादा तो वो तो टेररिज्म के खिलाफ है। मैं एक और
बात यहाँ पे रखता हूँ, जो मिसिंग होता है वो दहशतगर्द है, उसके लवाकिन दहशतगर्द है, या जो उसको उठा के मिसिंग करता है वो दहशतगर्द है, गैर आईनी गैर कानूनी बात करता है. जो मिसिंग होता है उसके लिए बात करने वाला दहशतगर्द है या नहीं, उसको बात करने के लिए जो नहीं छोड़ता, जो मिसिंग करता है वो गैर आईनी गैर कानूनी बात करता है. जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का शिकार होता है वो दहशतगर्द है, उसके लवाकिन दहशतगर्द है, या जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का शिकार करता है वो दहशतगर्द है. और इस अमल के खिलाफ जो बात करता है उसको आप क्या कहेंगे? जो कहते हैं फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका दे दें, जो इंसाफ के तकाजे पूरी करें, इनको इंसान समझे, इनके हकूक जो है वो गजब ना करें, जेनोसाइड का शिकार बलूच को ना करें, बलूच की सरजमीन पे जेनोसाइड ना करें, तो ये तमाम जो है इंसान की बातें हैं, इंसानी बका की बातें हैं, आईनी और कानूनी बातें हैं. इसमें टेररिज्म कहाँ से आ गई? बिल्कुल, ये तो वो चीज़ें जो एक कानूनी माहिर से, कानूनी हैसियत है आपसे एक कानूनी माहिर है वकील पूछना बनता थी जो पूछना. सर आपको क्या लगता है डॉक्टर मारंग कब तक रिहा होंगी? कोई इम्कान है? कानून के अगर एक वकील की हैसियत से मुझसे पूछते हैं, मैंने हमेशा किया एक डिफरेंशिएट किया कि यहाँ पे मैं वकील की हैसियत से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एक्टिविस्ट की हैसियत से, सियासी वर्कर से बात कर रहा हूँ. एक वकील की हैसियत से कि कानून अजम्पशन की गुंजाइश नहीं देती कि हम अज्यूम करें, ला में अजम्पशन की बिल्कुल गुंजाइश. मैंने कहा ना यहाँ पे तो बहुत कुछ होता है, केस आपका है, ठीक है, आप वकील हैं या आप क्लाइंट है, किसी को भी कर दिया, मैं आपको कॉल भी कर रहा हूँ, आपसे फैक्ट्स भी ले रहा हूँ, आपको तंग भी कर रहा हूँ, अपना ड्राफ्ट दे दो, या आपका केस है मैं पीछे से आके उसमें पेश हो रहा हूँ, इंटरफेयर कर रहा हूँ. प्रोफेशनल एथिक्स अलाउ नहीं करते एक ये, और दूसरा एक अजम्पशन पे नहीं चलती. इसमें मैं ये कहूँगा कि कानून के तकाजे पूरे किए जाए, जो नहीं किए जा रहे हैं फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए. इस प्रोसेस में जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने कोई नेकनामी नहीं कमाई है, सबने बदनामी कमाई है. रियासत हो, रियासती इदारे हो, जुडिशरी हो, चाहे कोई ऐसा वकील भी जिसने बेईमानी की है, जिसने प्रोफेशनलिज्म को और एक्टिविज्म को मिक्स किया है, किस इंटेंशन के तहत आए. तारीख पे बहुत सी चीजें छोड़ते हैं, तारीख बहुत सी चीजों का फैसला करता है. एक रिसर्चर भी कर सकता है, क्रिटिकल अप्रोच रखने वाला, प्रूडेंट माइंड रखने वाला इंसान भी कर सकता है. नेकनामी किसी की यहाँ पे नहीं हुई, इसलिए ये है कि इनको इनके हकूक दिए जाएं. एक्टिविज्म करना एक सेहतमंद माशरे की निशानी होती है, आईनी कानून के तकाजे पूरे किए जाएं. एक सियासी वर्कर की हैसियत से तब भी मैं कहता हूँ कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए. अब भी मैं देख रहा हूँ ज़ाहिरी तौर पे कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे हैं. मुझे वो तकाजे पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, और इनकी खासकर जो पास्ट हिस्ट्री है वो भी यही बताती है कि मेरिट पर कभी चीज़ों को ना करते हैं ना करने देते. सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. बलूचिस्तान असेंबली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट जो पास किया गया, आप क्या समझते हैं ये कैसा एक्ट है और ये किन पर लागू किया जा सकता है? क्या डॉक्टर मारंग पर ये एक्ट लागू किया जा सकता है? ये हम सब पर लागू किया जा सकता है, आप पर भी, मुझ पर भी, डॉक्टर मारंग पर भी. आप डरा रहे हैं सर? डरा नहीं रहा हूँ, वो ये करने जा रहे हैं. एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 सेक्शन 11E, अब उसमें एक और ई का इजाफा कर दिया. 3 टाइम ई ऑलरेडी था, 4 टाइम ई उसमें इजाफा कर दिया सब सेक्शन के अंदर. एंटी टेररिज्म एक्ट बलूचिस्तान असेंबली का बिल नंबर 18 है. उसमें ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी अदालत के सामने पेश किए बगैर, FIR के बगैर, सबूत के बगैर, शक की बुनियाद पर, यानी किसी भी बादशाह सलामत को ये ख्याल आ गया कि इसको मैंने रखना है, इसने कहीं मेरी तौहीन की होगी, मेरी अना को अर्ट किया होगा, या इसके एक्टिविज्म से खतरा है, उसको जानवरों की तरह मैं किसी बाड़ में रख सकता हूँ. जैसे गोंतानामो बे, जैसे रोहिंग्या मुसलमानों के साथ चाइना में हो रहा है, चाइना का मॉडल है, वहां से ये लेकर आए हैं इसको, वो रख सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होगा. रिमांड भी नहीं होगा कि 10 दिन का रिमांड है, अदालत के सामने पेश किया, 14 दिन का रिमांड है, उसके बाद एक्सटेंड हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. तो ये मारंग साहबा पे भी लगा सकते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं. हाँ, इसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, मैंने इसको चैलेंज किया हुआ है. केस हमारी पेंडिंग है. अब चूंकि छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों के बाद इसकी हेयरिंग होगी. एक तो कोटा प्रेस क्लब का जो होता है, इन्होंने DC साहब ने, एजेंट टू द गवर्नर जनरल साहब ने, जैसे होता था ना कि जी यहाँ पे प्रोग्राम नहीं होंगे मेरी इजाजत के बगैर, उसको हमने चैलेंज किया. मैंने ये इसको चैलेंज किया, और अभी हमारे साथी पूरी टीम है, तो अदालत ने उसको स्टे किया. एक ये प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है, इसको हमने चैलेंज किया हुआ, पेंडिंग है. दूसरा ये मिनरल और माइन एक्ट जो है, इसको भी हमने चैलेंज किया हुआ है, कोर्ट में पेंडिंग है.
اور ایک اور نیا سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا ہے, پہلے یہ کہتے تھے نا BYC کا سلسلہ 22 مارچ کا وہاں سے شروع ہوا, یہ لاشیں لینے آئے تھے. اب اس عید پہ انہوں نے 7 لاشیں لے کر آئے ہیں, کوئٹہ کے سرود خانے میں رکھا ہے, اور کبھی کہتے ہیں عیدی کو دیا ہے, کبھی کہتے ہیں تدفین ہوئے ہیں, کبھی نہیں مانتے ہیں. اس پہ ہم نے کیس لگایا مجسٹریٹ کے سامنے, پھر مجسٹریٹ سے ہوتے ہوئے وہ بھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, وہ لاشیں آج تک نہیں دے رہے ہیں. اس دفعہ صرف اور صرف لوائقین آئے ہیں, نہ ڈاکٹر مارنگ صاحب آئی ہیں, نہ BYC آیا ہے, نہ کوئی اور آ رہا ہے. اس کے باوجود نہیں دے رہے ہیں, تو وہ کیس بھی ہائی کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے. یہ 5-6 کیسز ہیں جو ہم نے وہاں پہ لگایا ہوا ہے, بحیثیت ایک انسان کے کہ ہم سمجھتے ہیں اس پہ ہم نے کام کرنا ہے اور اپنی کنٹریبیوشن دینی ہے, تو اس میں ہم لگے ہوئے ہیں. ایک سوال میں بھول گیا سر, آپ کی ڈاکٹر مارنگ یا باقی جو گرفتار قیادت ہے BYC کی, ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ کیا کہتے ہیں وہ اور کیا صورتحال ہے؟ ریسنٹلی, ویری ریسنٹلی تو میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. عید سے پہلے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں پہلے دن سے آخر تک, جب تک میری ملاقات ہوتی رہی ان سے, کیونکہ ہائی کورٹ سے یہ ڈائریکشن تھا, مجھے ہائی کورٹ کے ڈائریکشن پہ ملاقات کے لیے چھوڑا جاتا تھا کہ وکیل کو ملنے دیا جائے. ویسے وکیل کے تو میں جاتا تھا, میں ملتا تھا. تو انہوں نے پہلے دن سے کہا کہ جی میں اس سب کے لیے تیار ہوں, یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں, اپنا شوق پورا کریں. میں نے پہلے دن ہیومن رائٹس کی بات کی ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف بات کی ہے, مسنگ پرسنز جو انفورسپینس کا شکار ہے اس کے خلاف بات کی ہے. جب تک زندہ ہوں میں یہ بات کرتی رہوں گی, یا کوئی مجھے مطمئن کرے کہ میرے ڈیمانڈ جو ہے یہ غلط ہیں, غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. میرے ایکٹیویزم سے پہلے بھی لوگوں کو مارتے تھے, اٹھاتے تھے, اجتماعی قبریں تھیں, آج بھی میں بے عدی بارود یہ سلسلہ چل رہا ہے. وہ صرف اس وائس کو دبانا چاہتے ہیں جو کبھی نہیں دبے گا. ڈاکٹر مارنگ ہے آج, کل کو کوئی اور ہوگا. جب تک بلوچستان میں یہ آپریشنز, مسنگ پرسنز, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, وسائل کا لوٹ کو سوٹ ہے, تو بلوچ مارنگ کی شکل میں یا کسی اور کی شکل میں یہ بات کرے گا, یہ روکے گا نہیں. یہ ان کی باتیں ہوتی تھی. چلیں, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم فار کمنگ ہیئر. ناظرین, عمران بلوچ ایڈوکیٹ صاحب تھے جنہوں نے اوور آل سچویشن پر ہمیں تفصیلی بتایا. ڈاکٹر مارنگ, بیبو بلوچ اور گلزادی بلوچ اور باقی جو گرفتار BYC قیادت تھی, اس کے علاوہ جو غفار بلوچ صاحب تھے, اس حوالے سے تمام تر چیزوں سے ہمیں آگاہ کیا. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ کمنگ ہیئر. اور اس وقت یہ پوڈ کاسٹ یہیں پر اختتام کو چاہتے ہیں. آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ ایک نئے مہمان اور ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.